आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल द मैन हु सैड हार्ट ब्रेकिंग थिंग्स अबाउट इंडिया। तो जी देखते हैं पहले वीडियो, कौन से आदमी ने क्या बात की है इंडिया के बारे में। पहले देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार्ली मंगर के बारे में। नाउ ये जो नाम है आज के समय हर जगह ट्रेंड कर रहा है। आप सोशल मीडिया पे जाओगे तो कई लोग लगातार पोस्ट कर रहे हैं कि RIP चार्ली। और उसके अलावा आप अगर गूगल पे एक बेसिक सर्च भी करोगे ना तो बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे कि बिलियनियर चार्ली मंगर, जो वॉरेन बफेट वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, इनके मेन पार्टनर थे, इनकी मृत्यु हो गई है। और चार्ली मंगर अपने आप में एक बहुत ही बड़े निवेशक थे। कई लोगों के लिए ये इंस्पिरेशन थे। 99 इयर्स की एज में इनकी मृत्यु हो चुकी है। नाउ इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें ना तो आज से कई साल पहले, करीब 6-7 साल पहले, चार्ली मंगर से पूछा गया था भारत के बारे में और उस वक्त इन्होंने बहुत सारी दिल तोड़ देने वाली बातें कही थी। नाउ ये जो वीडियो है ना जहां पे ये बात करते हैं इंडिया के बारे में, करीब 2 मिनट के आसपास की वीडियो है, ये मैं चाहता हूं आप देखें। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस कंटेक्स्ट में यहां पर ये बात कर रहे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दिस वीडियो। That's what I think of it. So I think now you turn to India, and I would say I'd rather work with a bunch of Chinese than I would Indian civilization, mired down, caste system, overpopulation, assimilating the worst stupidities of the democratic system, which, by the way, Lee Kuan Yew avoided. It's hard to get anything done in India, and the bribes are just awful. So all I can say is it's not going to be easy for India to follow the example of Lee Kuan Yew. I think India will move ahead, but it is so defective as a get-ahead in place. The Indians I know are fabulous people. They're just as talented as the Chinese, the Indian populace. But the system and the poverty and the corruption and the crazy democratic thing where you let anybody who screams stop all progress, it mires India with problems Lee Kuan Yew didn't have. And I don't think those Indian problems are all easy to fix. Let me give you an example. The Korean steel company, POSCO, invented a new way of creating steel out of lousy iron ore and lousy coal. There's some province in India that has lots of lousy iron ore and lots of lousy coal, which there's not much use for. And this one process would take their lousy iron ore and the coal and make a lot of steel, and they got a lot of cheap labor. So POSCO and India were made for each other. And they made a deal with this province to get together and use the POSCO know-how and the Indian lousy iron ore and lousy coal. And 8 or 9 or 10 years later, with everybody screaming and objecting and farmers lying down on the road or whatever was going on, they canceled the whole thing. In China, they just would have done it. Lee Kuan Yew would have done it in Malaysia. India is grossly defective because they've taken the worst aspects of our culture, allowing a bunch of idiots to scream and stop everything, and they copied it. And so they've taken the worst aspects of democracy, and then they've forged their own chains and put them on themselves. So, no, I don't like. I do not like the prospects of India compared to the prospects of and I don't think that India is going to do as well as Lee Kuan Yew. तो जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया होगा, दिल तोड़ देने वाली बातें यहाँ पर उन्होंने कही है। अगेन डिपेंड करता है आपके पर्सपेक्टिव पे कि आप इनसे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। कई इश्यूज पे इन्होंने यहाँ पर बात करी कि भारत में करप्शन बहुत ज़्यादा है और उसके अलावा इंडिया में ना इनके हिसाब से हम लोगों ने डेमोक्रेसी की जो अच्छी बातें हैं वो इग्नोर कर दी, जो डेमोक्रेसी की खराब बातें हैं वो इंडिया में हर जगह आपको दिखती है। ये इन्होंने बात बोली है कि इंडिया में सिस्टम ऐसा है कि कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट रोकना हो ना, कोई भी 5-6 आदमी इकट्ठा खड़े हो जाएंगे, जोर जोर से चीखेंगे और वो प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। ये ऑफ कोर्स पॉस्को स्टील प्लांट की भी यहाँ पर बात कर रहे हैं। इन्होंने समझाया कि किस तरीके से वो प्रोजेक्ट भारत के लिए बेनिफिशियल हो सकता था, मगर सिंस भारत में लगातार प्रोटेस्ट हुए, इवेंचुअली जो ये प्रोजेक्ट है ये भारत से हटा दिया गया। और कोई चाइना जैसा देश होता, वियतनाम जैसा देश होता ना, तो ये लोग इस प्रोजेक्ट को ना छोड़ते। तो इनका ये पर्सपेक्टिव था, इनका मानना यह है कि डेमोक्रेसी से इंडिया की जो डेवलपमेंट है इसको काफ़ी लॉस हुआ है
और कई लोग हैं इंडिया में वो ये मानते हैं कि एक्चुअली चार्ली मुंगर भारत को लेकर ज़्यादा ही पेसिमिस्टिक थे, निराशावादी थे, और चाइना को लेकर ये कुछ ज़्यादा ही अफेक्शनेट थे, क्योंकि चाइना में जो इनकी इन्वेस्टमेंट्स थी उससे इनको काफ़ी बेनिफिट हुआ, इन्होंने काफ़ी पैसा कमाया है चाइना में। आप अगर देखो तो सोशल मीडिया में इन्हें आज याद किया जा रहा है एज ए ग्रेट इन्वेस्टर जिसने चाइना का काफ़ी फ़ायदा किया था, यूएस में इन्होंने काफ़ी पैसा कमाया। तो इट डिपेंड्स नाउ, इनकी जो बातें हैं आपके पर्सपेक्टिव से क्या ठीक है या गलत है, क्योंकि अगेन देखो मैं इस पर अपना पर्सपेक्टिव दूंगा अनफेयर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा इन्होंने ऐसी बातें कही है जिसको लेकर भारत में काफ़ी कंट्रोवर्सी होती है कि ये ठीक है या नहीं है। तो मैं पर्सनली यहाँ पर नहीं कहूँगा कि इन्होंने जो कहा था वो सही है या नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सिंस हज़ारों लोग वैसे ही कमेंट करते हैं, तो मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा आपके हिसाब से क्या आप एग्री करते हैं चार्ली मुंगर की कमेंट से, या फिर आप मानते हैं कि नहीं ये भारत को लेकर ज़्यादा ही पेसिमिस्टिक है। आज के समय 2023-24 में अगर हम देखें तो इंडिया इज़ डूइंग मच बेटर, चाइना स्लो डाउन कर रहा है। लिटरली रिसेंटली स्टैंडर्ड एंड पुअर्स एसएनपी ने रिपोर्ट तैयार करी है और इस रिपोर्ट का नाम है चाइना स्लोज इंडिया ग्रोज, और इसमें इन्होंने बताया है कि 2026 तक इंडिया की जीडीपी आराम से 7% तक ग्रो करती रहेगी, जबकि चाइना की जो जीडीपी है ये 3-4% के आसपास पहुंच जाएगी इन जीडीपी ग्रोथ रेट। बट स्टिल ऑब्वियसली इन द लार्ज कंटेक्स्ट अगर हम बात करें तो चाइना फिर भी काफ़ी ज़रा आगे रहेगा। तो बताइएगा आपके हिसाब से चार्ली मुंगर जिनके बारे में आज के समय पूरी दुनिया बात कर रही है, ही इज़ नो मोर नाउ, इनकी जो कमेंट्स थी रिगार्डिंग इंडिया आपके हिसाब से ठीक थी, नहीं थी, और आप क्यों मानते हैं कि इनकी कमेंट सही थी या नहीं थी, कुछ इसका जो रीज़न है ये भी मेंशन करिएगा। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। तो जी दोस्तों वीडियो होगी खत्म। ये चार्ली मुंगर है, ये टुंगर है, कौन भी है मुंगर है या चले टुंगर क्या है, उसने टंग जो चलाई है, टंग मतलब समझो जुबान, उसने टंग चला दी काफ़ी ज़्यादा, वो उसने लंबा सा भाषण भी दे दिया। अच्छा बात अब करते हैं इंडिया में करप्शन की। भाई बात इसमें कोई डाउट नहीं है, करप्शन हर जगह है, बिल्कुल। मैं ये नहीं कहता कि इंडिया करप्शन से पाक हो गया, और ना इतना इजीली हो सकता है। करप्शन उधर आज भी है लेकिन लेवल लो है। पाकिस्तान में जितनी लूट मार है ना इतनी नहीं है, इतनी तो मैं कहता हूँ कहीं भी नहीं होगी। अफ्रीका में कोई कंट्रीज हों तो हों, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की जिस तरह जो लूट मार मची हुई है ना इधर इंडिया कहीं भी नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि इंडिया इसको ग्रो कर रहा है, वो रिपोर्ट्स भी एंड पर प्रशांत सर ने बात की। अच्छा मुंगर पर बात करते हैं, मुंगर ऐसा क्यों बोलता होगा, सोचिए अपने कमेंट्स पे। मैं बताता हूँ, वो आज से तकरीबन बात कर रहा है 40 साल पुरानी, कितनी वो कह रहा है प्रशांत सर कह रहे हैं कि तकरीबन यानी कि बहुत अरसा पुरानी बात। उस वक्त भाई इंडिया की जो देखे ना जो कंडीशन थी ना वो मत कर देखे तो वाकई नॉर्मल थी, इतना इंडिया पावरफुल या इतना पावर स्ट्रॉन्ग इंडिया नहीं था जितना अब है। अच्छा तो उस वक्त जो है ना वाकई इंडिया में बम ब्लास्ट होते थे, धमाके वगैरह होते थे, इंडिया में पहले होते तो रहे, आप हैरान हो रहे हैं। जो मुंबई अटैक हुए हैं और करवाया किसने, करवाएंगे वो बात की बात है, मैं वो मसले के तहकीक में नहीं हूँ कि मैं चलेंगे मैं तो वजह बता रहा हूँ। अच्छा वजह नहीं बता रहे, उसका रिस्पॉन्स जी वजह बता रहा हूँ उसने क्यों कहा है। अच्छा तो मेरे ख्याल में उसने इस वजह से कहा कि इंडिया उस वक्त कमजोर था लेकिन अब इंडिया पे बिल्कुल पावरफुल है। अब तो नहीं ना कर रहा भाई, अब देखेंगे उसके सामने ही इंडिया की जो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है, उसके अलावा इकोनॉमी उसकी देख लें, उसके अलावा जो मिलिट्री जो ताकत है पावर वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब तो उसने बात नहीं की, वो जो बम धमाकों की वजह से। असलम भाई जी आपको लगता है? मैं तो भाई यही कहूँगा कि एक तो उसकी बात ये थी कि जिसकी वजह से वो मेरे ख्याल में इंडिया के अगेंस्ट बोला है या गलत बातें की, वो ये थी कि भाई उसने चाइना में इन्वेस्ट किया था तो चाइना की वो डेफिनेटली तारीफ कर रहा था, बहुत ज़्यादा कर रहा था क्योंकि भाई उसे वहाँ से बहुत ज़्यादा मुनाफा मिला था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस पर कुछ चाइनीज़ का कह लें कि इम्पैक्ट पड़ा है या उसके कारोबार ने जितनी ग्रो वहाँ पे की है ना चाइना में, हो सकता है उसकी वजह से उसने ये बोला हो कि भाई इंडिया जो है ना इंडिया में इतनी ग्रो उसके कारोबार ना। उसने डेमोक्रेसी पर बात की। मैं अब उसको एक मिसाल से समझाता हूँ। इसकी कहीं फैक्ट्री लगी हुई है चाइना में, मैं वैसे ये बात नहीं करना चाहता था लेकिन मैं डेमोक्रेटिक की बात करता हूँ कि इंडिया कितना बेहतर है चाइना से। और उसकी जो कोई बेटी होगी वो उधर दौरा करने गई, उसको उधर रेप हो गया चाइना के अंदर। लेकिन जब ये रेप हुआ
क्योंकि उधर मीडिया तो आज़ाद है नहीं, डेमोक्रेटिक तो वो है नहीं, तो वो ये बात दब गई। और ये जो मुंगर है ये अपने अंदर ना कुड़ता रहा और खुदकुशी कर ली। तो बात दुनिया को भी नहीं पता चला सच किसने किया कि नहीं किया, लेकिन बात ये फैला दी गई। चले मान लिया कि ये बात फैला दी गई कि भाई मुंगर की बच्ची का उधर रेप हो गया, लेकिन हुआ नहीं। अब उसको साबित करने के लिए, आज़ादी राय के लिए उसको कुछ ना कुछ तो प्रूफ देने पड़ेंगे, या कुछ ना कुछ तो उधर बात करनी पड़ेगी, या उसकी फैक्ट्री में आग लग गई उसके जो दौरे के दौरान। ये है डिफरेंस चाइना और इंडिया में। चाइना के अंदर आप हकीकत सामने नहीं ला सकते, आप नहीं पता कर कि उसकी बेटी का रेप हुआ था कि नहीं हुआ था। अगर तो वो चाइना के हक में है कि उसको छुपाना तो वो छुप जाएगा, अगर वो चाइना के हक में नहीं होगा तो फिर वो उसको वावेला करेगा। लेकिन इंडिया का ये सीन नहीं होगा। डेमोक्रेसी के लिहाज से आप आम जनता का ये हक होगा कि उसका पॉइंट आउट किया जाए और उसको तमाम मीडिया चैनल पर उसको डिस्कस किया जाए और उसका रिजल्ट निकाला जाए, उसका कंसिक्वेंसेस, उसका जो है ना उसका सद्भाव किया जाए। ठीक है ना, ये सबसे मुझे लगता है मेजर डिफरेंस है चाइना और इंडिया में। मतलब चाइना के अंदर आप कुछ भी नहीं है अगर गवर्नमेंट आपको ना कुछ चाहे बनाए तो, लेकिन इंडिया के अंदर आप सब कुछ है। आप चाहे आपको गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट है या आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, लेकिन आप सच पर हैं तो आप आगे हैं। बिल्कुल इस तरह आप सच पर हैं तो आप ये मुंगर साहब भूल गए हैं कि डेमोक्रेसी का ये हुस्न है। और इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री, बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री। भाई वो बात कर रहे हैं इंडिया के पुराने दौर की, अब करेंगे तो आज की स्टेटमेंट है 1-2 दिन की, आज की स्टेटमेंट है उनकी जी अब की है। तो फिर तो मैं तो ये करंट वीडियो ही है, ये को पागल है फिर तो ये भाई। और यार असल में ना मेरे ख्याल में नाता नहीं है, ये क्या मसला फिर तो भाई उधर यार असल में मुझे लगता के कर रहा है ये एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन को एक तो पहली बात मुझे लगता है कि इस पे चाइना का काफी असर पड़ा है। चाइना में उसकी इसकी इन्वेस्टमेंट वजह से इसने जो है इसकी ना वजह से ऐसे भाई हम अगर अपना पॉइंट व्यू देते हैं, हम इस चीजों से एग्री नहीं। बिल्कुल नहीं है, गलत कह रहा है ये। इसने ना ये तो पाकिस्तानियों से भी आगे गुजर गया है। मुझे लगता है कि रमीज राजा किसने झूठा वगैरह खा लिया होगा। भाई रमीज राजा का देख लें कि लेवल क्या, और इसका देख लें कि ये मतलब कि कितना अमीर तरीन शख्स है, एक पॉपुलर जो है ना अमीर तरीन शख्स का मतलब ये नहीं कि वो ज़हीन भी होगा, अक्लमंद भी होगा। तो उसने कारोबार फिर अकल और ज़हीन से और किसने कहा, और किससे कही? ओए अल्लाह के बंदे सच्चे मेहरबानी किया कर, तू पता तुम भी कंफ्यूज ही हो। जहानत और चीज है, अक्लमंदी और चीज है, और जो दौलत है वो और चीज है। भाई दौलत तो कंजरों के पास भी बहुत होती है, जो नाचते हैं, जो सारे इधर हमारे होते हैं उनके पास भी होती है। अकल जो है ना, अकल और शऊर, ये अल्लाह हर एक को नहीं देता। अकल से कमाई जाती है दौलत भी भाई। अगर आप पागल है, पागलों के पास तो नहीं है रुपया। यस भाई समझाओ इसको। और दौलत एक और चीज है, हिकमत, सोच, अकल और चीज है। क्या तुम्हारी भी अकल नहीं है? मुझे लगता है चलो आपको तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ कि उसने ये उसकी रमीज राजा के साथ आप उसका कंपेयर कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि उसके पास पैसा मैंने इस वजह से कहा है मैं पैसे की तुलना ही नहीं कर रहा, मैं तो अकल की ये बात नहीं है कि भाई जिसके पास पैसा ज्यादा वो अकलमंद हो। थोड़ी सी आप बात को समझे, ठीक है आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, लेकिन आपको बात को ना फॉलो करना चाहिए। कितने अकलमंद देखे जिनकी जेबें खाली होती हैं और बड़े बड़े को मशवरे देकर, मैं कई मरतबा देखा बड़ी कंपनी सिर्फ उन वर्कर्स के दम पर चल रही होती है जो सबसे लो लेवल पर होते हैं, जिनका अकल इस्तेमाल करके कंपनी चल रही होती है। जरूरी थोड़ी है कि जो पैसा कमा रहा है वो अकलमंद भी होगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? भाई अकलमंद होगा तो पैसा कमाएगा, उसको पता होगा कि मैंने कारोबार किस तरह से करना है। वो सफेद है, रहमतुल्लाह तुम्हारा कौवा सफेद है, वो ताक़यामत सफेद ही रहना है। ये बात नीचे कमेंट में पता चल जाता है। अगर तुम्हारी बात सच है कि मेरी बात अथेंटिक है, कि जरूरी नहीं है कि हर अमीर बंदा अकलमंद हो। हाँ, ये भी जरूरी नहीं कि हर अकलमंद बंदा गरीब हो, बल्कि हर चीज आपने कहा अकलमंद है तो पैसे कमाए, और पैसे तो किसी के पास भी आ जाता है। ये किस्मत में ठीक है, मेहनत जरूर है, मेहनत और चीज है, अकलमंदी और चीज है। अल्लाह के बंदे, ये आप बकलौली कर गया ना, ये अकलमंदी कर गया। तुम इसको अकलमंद कह रहे हो? नहीं, मैं तो उसको नहीं। फिर पैसा है ना, तुमने कहा जिसके पास अकल है उसके पास पैसा भी है, ये अकलमंदी है यार। मैं ये कह रहा हूँ और अकलमंदी और चीज होती है, शऊर और चीज होता है भाई। लेकिन ये चीजें उसने बकवास की हैं, हम इनसे एग्री नहीं है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।